سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے محفل میلاد ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ رونے والی ایک کیفیت بنتی ہے۔ ایسے اشعار پڑھنا کیسا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر عشق میں رونا آتا ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ نارمے میں بہت برف باری ہوتی ہے، تو اگر برف میں ہم نے نماز پڑھنی ہوئے تو ہمارا سجدہ کس طرح ہوگا؟ برف اگر سخت ہے اور اس میں پیشانی جم جاتی ہے، ناک کی ہڈی بھی لگ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ اگر چہرہ دھنستا جاتا ہے اندر تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ بعض اسلامی بھائی بار بار اپنی پاکٹ سے موبائل نکالنے کی بجائے موبائل کو ڈوری سے باندھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ حرج نہیں ہے، ویسے بھی یہ کوئی زیور تو ہے نہیں۔ ہاں زنجیر میں نہ لٹکائیں، ڈوری میں دھاگا ہے، ستلی ہے، اس طرح کی کوئی چیز، اور عورت ہے تو زنجیر میں بھی لٹکا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جانے کے بعد قبر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا تو کیا ایسے شخص کے جسم کو بھی قبر کی مٹی کھائے گی یا نہیں؟ یہ مخصوص ایسے افراد ہیں کہ جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محفل میلاد ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ رونے والی ایک کیفیت بنتی ہے۔ ایسے اشعار پڑھنا کیسا؟ اور ہمارے پنجاب میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ محفل میلاد کے دوران ماں کی شان، باپ کی شان بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ اشعار کی صورت میں، تو وہ بھی رونا آ رہا ہوتا ہے اس وقت، تو یہ اشعار پڑھنا کیسا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر عشق میں رونا آتا ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اب یہ کہ ماں کی شان میں اور باپ کی شان میں آج کل تو نہیں کرتے ہوں گے، مثلا ماں کی برسی ہوتی ہے نا، تو آپ کے یہاں یہ رواج پڑ گیا، اب ہمارے یہاں بھی شاید آ رہا ہوگا یا آ جائے گا، خطرہ تو ہے۔ تو یہ ماں کی سال ثواب کی محفل کا تو منع ہے نہیں، تو کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو خرابی اب پیدا ہو گئی نا، وہ ماں کے تعلق سے ایسے ایسے کلام ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، وہ پڑھتے ہیں رونے کا ماحول بناتے ہیں، اور وہ مطلب آنسوؤں سے آنکھیں خالی کرتا ہو اور پیسوں سے جیب خالی کرتا ہو، تو تعجب نہیں، کبھی ایسی محفل اٹینڈ نہیں کی میں نے، سمجھے؟ یہ مطلب اب ہو رہا ہے، تو ایک مطلب ایسا انداز اختیار کرنا جس سے تجدید حزن ہو، گناہ تازہ ہو، اس کی ممانعت ہے۔ اس لیے مطلب ماں کے باپ کے سال سب کے لیے ضرور کریں محفل، سال میں ایک کیوں، سال میں 12 کریں، 15 کریں، 15ویں شریف کی نسبت سے، لیکن یہ کہ رونے رلانے والا ماحول نہ بنائیں، اس طرح کے کلام نہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ نعت خوانوں نے کوششیں کی تھی، خود ہمارے نعت خوانوں نے، پھر ہم نے مطلب ان کو یاد ہوگا، بہت سے کو یاد ہوگا، اس طرح کے الٹے سیدھے اشعار پڑھے تھے، اب میں نے لائیو منع کیا تھا، یار یہ دھندا کیا شروع کیا، ہمارا کام تھوڑی ہے یہ بالکل کرنے کا نہیں ہے۔ یہ آقا کی ثنا خوانی کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، منقبتیں بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، یہ سب مطلب ہمارے ہاں ہے الحمدللہ اور رہے گی۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सईदी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आरिफ अत्तारी है और मैं कुवैत से आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। माशाअल्लाह। ज़रूर मेरा सवाल ये है कि बंदा जब दीन और दुनिया दोनों किस्म की आज़माइशों में मुब्तला हो जाता है और बाज़ औक़ात फिर उसका जो ज़हनी और क़ल्बी कैफ़ियत होती है कि वो फिर अपने लिए मौत की दुआ मांगना शुरू कर देता है, और ख़ुसूसी तौर पे उस सिलसिले में कि जब वो कोशिश कर रहा हो कि अपनी इस्लाह कर सके, अपने अमाल दुरुस्त कर सके, नमाज की तरफ आ सके, लेकिन बावजूद कोशिश के उससे उसकी इस्लाह ना हो पा रही हो, तो इस सूरत में अगर बंदा अपनी मौत की दुआ करे तो क्या ये करना कैसा है हुज़ूर? तौबा करता रहे, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो। फिर ऐसे मौके पर ये गुंजाइश है, याद पड़ता मुझे, कि दुआ इस तरह करे कि या अल्लाह मेरा ज़िंदा रहना मुनासिब है तो मैं ज़िंदा रहूँ, तेरी इबादत करूँ। अगर वाकई चलकर भी मैंने गुनाही करने हैं, अगर फिर मेरी ईमान पर ख़ात्मा हो जाए, है ना, इस तरह का। इस तरह कहने के मोहतात है कि मतलब जब मायूस हो जाए हर तरफ से कि तो यूं दुआ करे, जो मेरे हक में बेहतर है वो हो। अगर जिंदा रहना बेहतर है कि जिंदा रहकर मैं नेकियां कमाऊं, सही हो जाऊं, गुनाह माफ़ कर दूं, तो मुझे तो जिंदा रख। अगर आगे चलकर मेरे गुनाही होने हैं तो या अल्लाह पाक मुझे ईमान पर आफियत के साथ, तौबा के साथ मैं दुनिया से चला जाऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. Jag heter Mohammed Ayan Asif Attari och jag har med mig 4 islamska bröder från Norge. Och i Norge så har vi alhamdulillah köpt ett Madni Markaz som kostar 15 miljoner kronor. Och vi har inshallah intention om att öppna Jamiatul Madina i den markazen. Och jag gör intention om att delta i Jamiatul Madina och invitera andra islamska bröder till detta också. Mitt spørsmål til Bapa Jani i Norge så snør det veldig mye. Hvis man må be på snøen, hvordan utfører man sajda? मेरा नाम मोहम्मद अयान आसिफ अतारी है. हम 4 इस्लामी भाई नॉर्वे से हाजिर हुए हैं. माशाअल्लाह. नॉर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली नया मदनी मरकज़ खरीदा है 15 मिलियन करोड़ का. इस मदनी मरकज़ में हमने ये नियत की है कि हम इंशाअल्लाह जामिअतुल मदीना खोलेंगे. मेरी अच्छी नियत ये है कि मैं इंशाअल्लाह उस मरकज़ में जामिअतुल मदीना का दाखिला लूँगा और दीगर इस्लामी भाइयों को भी इसकी दावत दूँगा. हमारा बापा जाने से ये सवाल है कि नॉर्वे में बहुत बर्फ़बारी होती है, तो अगर बर्फ़ में हमने नमाज पढ़नी होए तो हमारा सजदा किस तरह होगा? नॉर्वे दूर है काफ़ी, है ना? माशाअल्लाह. तो अल्लाह आपकी इस आने जाने की चारों की काबिश कबूल फरमा है. माशाअल्लाह. वेलकम, मोस्ट वेलकम. बर्फ़ अगर सख्त है, ऐसी जमी हुई सख्त है और इसमें पेशानी जम जाती है, नाक की हड्डी भी लग जाती है, तो नमाज हो जाएगी. वरना अगर चेहरा धंसता जाता है अंदर, जितना दबाव धंसता है, तो फिर सजदा नहीं होगा. हाँ, इतना धंसा के इतना दब गया कि अब दबाने से नहीं दबेगा. तो कारपेट और घास वगैरह के लिए तो ये मसला लिखा हुआ है. बर्फ के लिए लिखा हुआ तो पढ़ना याद नहीं पड़ता. ये याद पड़ता है कि इतना सख्त हो कि पेशानी जम जाएगी. ये पढ़ा है. ये तो खैर वो आप माशाअल्लाह पूछ रहे हैं बर्फ पर नमाज पढ़े कौन? पढ़ी है? अच्छा, एक बार पढ़ी है. अब आप लोग आदी हैं ना ठंडक के, सर्दी के. ये माशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सलमान मोहसिन अत्तारी दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हाजिर हूँ. प्यारे मेरे सुन्नत आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है, किसी को ऐसी दुआ देना कैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको अपनी ऐसे ज़ियारत करवाएं जैसे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को करवाते थे. ये मना है इस तरह की दुआ. सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दुआ कर सकते हैं, ख्वाब में मुझे दीदार हो जाए. तो सहाबा किराम जैसी ज़ियारत करे कौन? किस में ताकत?
तो बहरहाल वो सहाबा किराम का हिस्सा था जो ले गए। तो सरकार चाहें तो अब भी बेदारी में ज़ियारत करवा सकते, इसके तो वाक़यात हैं, लेकिन ये कि आप सिर्फ दीदार की दुआ करें, सहाबा की तरह की वो क़ैद हटा दें जिसने दुआ करनी हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाफिज़ इब्राहिम अतारी यूके ब्लैकबर्न से हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। हम 5 इस्लामी भाई यहाँ हाजिर हुए हैं 1500वां जश्न मिलाद आपके साथ मनाने के लिए। माशाअल्लाह। तो मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि व्हाट्सएप पर बाज़ औक़ात इस्लामी भाई स्टार्ट पर भी सलाम करते हैं और एंड पर भी सलाम करते हैं, तो सलाम दोनों बार जवाब देना वाजिब है या सिर्फ एक बार काफ़ी है? असल वो सलाम जो है ना, जो मुलाकात के लिए जैसे कोई आया किसी के पास, तो अब ये सुन्नत तहियत कहलाता है, मुलाकात का सलाम ये सुन्नत, और इसका जवाब जो है ना इसका वाजिब है। अब मुलाकात मकसूद नहीं है, कोई वैसे किसी और काम के लिए आया, मसलन आपके साथ कोई चीज़ ख़रीदने आया या आपसे कर्जा वसूल करने के लिए आया या आपको कुछ पूछने के लिए आया और वो सलाम कर रहा है, तो जवाब देना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वाजिब नहीं है जवाब देना। तो इसी तरह जैसे कि अब वो आपको किसी ने व्हाट्सएप पर पैगाम दिया कि यार वो मुझे ज़रा उसकी मालूमात चाहिए कि आजकल कपड़े का भाव क्या चल रहा है, फला कपड़े का मिसाल, तो अब इसका मकसद आपसे मुलाकात वाला कैफियत नहीं है, वो तो अपना किसी चीज़ का भाव पूछ रहा है या पूछ रहा है कि वो यार इज्तिमा कितने बजे होगा या सुबह 12 ये प्रोग्राम कहाँ रखा है, इस बार जुलूस कितने बजे निकलेगा, जैसे इस तरह का किसी ने आपसे पूछा सोते पैगाम में, और आप अब और सलाम भी किया, इसका भी जवाब वाजिब नहीं है, जवाब देना चाहिए और दोनों बार देना चाहिए, सवाब का काम है, शहादत की बात है। सबको इसकी बारीकियां पता नहीं होती मसाइल की, तो वो फिर बदजन भी हो सकते हैं, बदगुमान हो सकते हैं कि यार ये सलाम का जवाब नहीं देता है मौलाना होकर, तो और मसाइल, तो मौके की मुनासिबत, तो जवाब देने में कोई देर तो नहीं लगती, तो एक दुआ है, सवाब का काम है ये। उसने भी तो दुआ दी ना सलामती की, आप भी सलामती की दुआ दे दें, वालेकुमुस्सलाम, तुम और तुम पर भी सलामती हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, मेरा सवाल ये है कि किसी काम की मसरूफियत की वजह से मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे सप्लायर का काम है या रंग वाले का काम है या इस तरह का कोई काम, तो बाद इस्लामी भाई बार बार अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने की बजाय मोबाइल को डोरी से बांधकर अपने गले में लटका लेते हैं, तो क्या इस तरह करना जायज़ है? हरज नहीं है, वैसे भी ये कोई जेवर तो है नहीं, हाँ जंजीर में न लटकाएं, डोरी में धागा है, सुतली है, इस तरह की कोई चीज़, और औरत है तो जंजीर में भी लटका सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई शख्स फौत हो जाने के बाद कब्र के सवालात में कामयाब हो गया, तो क्या ऐसे शख्स के जिस्म को भी कब्र की मिट्टी खाएगी या नहीं? ये मखसूस ऐसे अफराद हैं कि जिनको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, बाकी जिन्होंने भले मोमिन है, मुसलमान है, कब्र की मिट्टी तो खाएगी। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जैसे औलिया किराम, हाफिज़ कुरान जो है, जो कुरान पर अमल भी करता हो, उनके लिए बिशारत है। कसरत दुरूद शरीफ का जो है कि हमेशा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, मुख्तलिफ अक़साम हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, बाज़ लोग दस्तरखान के ऊपर से गुजर जाते हैं, ऐसा करना कैसा गुनाहगार होगा या नहीं? गुनाहगार की तो नहीं मतलब कह सकते, लेकिन ये पता नहीं अदब के खिलाफ है या नहीं, क्योंकि दस्तरखान जिस पर खाना खाया जाए ना, उस पर पाँव रखना कि मायूब समझा जाता है, अदब, मगर गुनाहगार नहीं कहेंगे। अगर दस्तरखान पे खाना वगैरह भी रखा हुआ हो तो उस वक़्त रोटी वगैरह रखी हुई है और ठीक है, लेकिन वो उस दस्तरखान पर पाँव रखा, गुनाह कैसे कहेंगे उसको? कोई अदब की बात है, टापेगा तब भी गुनाहगार थोड़ी होगा। अदब मतलब नहीं, लोग इसको मायूब समझते हैं, ये कोई
रखेंगे तो शायद आपको टोकेगा। इसके बारे में कुछ पढ़ना याद नहीं है मुझे, तो इसलिए वो अदब और बेअदबी का ताल्लुक बहुत सारी बातों में उर्फ पर होता है, लोगों में क्या राइज है, लोग किसको अदब कहते हैं, किसको बेअदबी कहते हैं। तो मुख्तलिफ कौमों में भी बाज़ औक़ात इस तरह की बातें देखी जाती हैं। शरीयत से ना टकराता हो तो अदब कह रहे हैं तो कर ले आदमी, बेअदबी से बच जाए। तनफीर अवाम से बचना भी है कि लोगों में नफ़रत ना पैदा हो, लोग बदसन ना हो, कभी ग़ीबतों में ना पड़े, इसको इतना भी तमीज़ नहीं है, ले दस्तरखान पर पाँव रख के निकल गया। तो अब ये बुरा वाला कहने वाला गुनाहगार हुआ ना, तो यूँ मतलब है दूसरों को भी गुनाहों से बचाना है, बदगुमानी से बचाना है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी सवाल ये है कि सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत के कलाम का एक शेर है, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। इस शेर के अंदर महंगे हों कोड़ी के तीन से क्या मुराद है? ये मुहावरा है, यानी किसी भी भाव में जो कोई कबूल ना करे वो मैं ऐसा हूँ। आजिज़ी आला हज़रत ने नहीं, ये जनरल बात की है, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हों कोड़ी के तीन, यानी कोई किसी भाव में भी कबूल ना करे। कोड़ी पहले सिक्का चलता था, ये कोड़ियाँ मतलब जो होती हैं समुंदर की, यानी तीन कोड़ी में भी कोई ले तो महंगा पड़े ना, बहुत कलील कीमत में भी कोई ले तो उसको महंगा ही पड़े। मैं ऐसा निकम्मा या ऐसे निकम्मे, तो कौन हमें पालता, हमें है ना, तो ये ना अपनी आजिज़ी के लिए फरमा रहे। तो आज ये बहुत ही मेरी कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल बेकार निकम्मा फर्द हूं मैं। कोड़ी किसी ने देखी भी है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। नहीं, असल पंजाब के ज्यादा ना, पंजाब में समुंदर है नहीं, ये दरिया में कोड़ी नहीं होती, समुंदर आपने भी नहीं देखी या उस वक्त वो ये लानी पड़ेगी यार कहीं से। ये समुंदर में एक मतलब खौल होता है जिसमें कीड़ा होता है समुंदरी, तो ये मतलब समुंदर से हासिल होती है, कीड़ा निकाल दिया जाता है। सीप, सीप की समझो किस्म है, या सीप ही कह लो, सीप की मतलब फिर अनवा अकसाम है, कई अकसाम होती है, मगर कोड़ी एक मखसूस समझे है, उसमें कीड़ा होता है, तो उससे बच्चे हम लोग तो पहले बचपन में बहुत देखी हमने, तो बच्चे खेलते थे उससे और इसका हार बनाते, इसका क्या क्या। आप भी ये केमाड़ी, कराची में एक इलाका है केमाड़ी, समुंदर के किनारे है, तो वहाँ तो ये बेचने वाले भी बैठे होते थे पहले। तो सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जब तुम चलो तो दोनों जूतियाँ पहन के चलो, लेकिन एक जूती पहन के ना चलो। ये एक जूता पहन के ना चलने की हिकमत बयान फरमा दे। इस हुक्म की बहुत सी हिकमतें बयान फरमाई। एक ये है कि ये तरीका शैतान का है कि वो एक जूता पहनकर चलता है, नीज ये तरीका शुरफा का नहीं, और ये कम अक्ली की अलामत है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि किसी की जालिम नज़र लगी है, नज़र को जालिम कहना कैसा है? और जो बुरी नज़र लगी तो है तो जालिम ना, बंदा तकलीफ में आ जाता है। अच्छी नज़र भी होती है, अच्छी नज़र बेड़ा पार कर देती है, बुरी नज़र बेड़ा गर्क कर देती है। हाँ, मैंने तो कई बार देखा है, पहले तो होता था कि बच्चे को वो इमाम साहब की नज़र डलवा लो, वो पीर साहब के पास ले जाओ, उनकी नज़र डलवा लो। जो शख्स 11वीं की न्यास करना चाहता है मगर इतनी खास इस्तिताअत नहीं रखता, अगर वो क्वालिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, और अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी कम करनी पड़ती है। दिल से जो हो वो कबूल है, अब थोड़ी हो ज़्यादा हो। अब 11वीं शरीफ के 1100 देगे करे और दुनिया को दिखाने के लिए करे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ 11 दाने किसी को दे दिए चावल के, वो कबूल हो गए तो बेड़ा पार हो गया। सरसब्ज़ इस गुलजार के